why is the Holy Spirit telling us the story of this lame person being healed? क्यों पवित्र आत्मा जो है इस कहानी को जो लंगड़े के बारे में बोल रही है? Are you attentive? क्या आप यहाँ पे जो है, Are you listening to me? आप लोग सुन रहे हैं? We are going to have a twist in the message. और इस संदेश में अब एक मोड़ है. In the beginning of this message, आरंभ में इस संदेश के I said the Lord Jesus is going to come back to receive us. मैंने कहा यीशु मसीह जो है हमको लेने के लिए आ रहा है. He said, behold, I come quickly. और वो कहता है बहुत शीघ्र ही मैं आ रहा हूं. 2000 years back, he said, behold, I come quickly. और 2000 साल पहले उसने कहा देख मैं शीघ्र ही आता हूं. Now I am 66 years old. अब मैं 66 साल का हो गया हूं. I received Christ into my heart when I was only 6 years old. और मैंने मसीह यीशु को अपने हृदय में तब ग्रहण किया था जब मैं 6 वर्ष का था. 6 वर्ष. 60 years of my life I have been walking with Jesus. मेरे जीवन के 60 वर्षों से मैं यीशु के साथ चल रहा हूं. And I have been listening to the messages. और मैं संदेशों को सुन रहा हूं. I have heard hundreds of preachers preach that Christ is coming soon, Jesus is coming soon. और सैकड़ों प्रचारकों को मैंने सुना जो ये प्रचार करते हैं यीशु शीघ्र आने वाला है, यीशु आने वाला है. Every day of my life I am expecting when will you come, the Lord. और मेरे जीवन के हर दिन में मैं ये जो है अपेक्षा करता हूं प्रभु कब तू आएगा. Praying to him all the time, when will you come, Lord, when will you come, praying to him all the time. हमेशा परमेश्वर से कहता प्रभु कब तू आएगा, कब तू आएगा, कब तू आएगा. But he didn't come. लेकिन वो आ नहीं रहा. 2025 years passed by. 2025 वर्ष बीत चुके हैं. Why the delay? ऐसी देरी क्यों हो रही है? The whole Bible is interconnected. पूरी बाइबल एक दूसरे से जुड़ी हुई है. Wonderful translation you have done. एक दूसरे से जुड़ी हुई है. The whole Bible, every book in the Bible, every verse in the Bible is connected to another verse. और बाइबल की हर एक पुस्तक या हर एक वचन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. Bible is not an ordinary book. बाइबल कोई जो है साधारण किताब नहीं है. You can read any book on the earth and understand, but not the Holy Bible. पृथ्वी की किसी भी पुस्तक को आप पढ़ करके उसे समझ सकते हैं लेकिन बाइबल नहीं. Now you will be wondering what this man is preaching. अब आप ये जो है सोच रहे होंगे कि ये प्रचारक क्या प्रचार कर रहे हैं. First he said the cloud of glory. Cloud of glory. पहला जो है महिमा का बादल. Then he said Jesus ascended. फिर उसने कहा यीशु मसीह जो है उठा लिया गया. Again he said 3000 people got baptized. फिर इन्होंने कहा कि 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया. Again he preached about the lame man being healed. फिर आगे उन्होंने प्रचार किया कि लंगड़ा व्यक्ति जो है उसको प्रचार किया गया और वो चंगा हो गया. Now this man is raising a question, why did not Jesus come for all these 2000 years? और अब ये सवाल व्यक्ति उठा रहा है कि क्यों यीशु मसीह जो है 2025 वर्ष बीत चुके अभी तक क्यों नहीं आया. Is it not something like that I am going out of my subject? क्या कुछ ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने विषय से बाहर जा रहा हूं? Naturally, because this man is an old man. ये स्वाभाविक हो सकता कि ये व्यक्ति क्योंकि बूढ़ा हो गया. बूढ़ा तो फिर भूल जाता है ना. Maybe this man should take retirement also. Retirement. हो सकता है ये व्यक्ति अब जो रिटायर्ड हो जाए. Like the lame, ex-lame person. जैसे वो लंगड़ा जो है पूर्व लंगड़ा हो गया. This man also must become the purva preacher. But in the Bible. Because this man is going to all subjects. What is this?
ठीक उसी तरीके से ये भी एक पूर्व प्रचारक बन जाए, क्योंकि बाइबल के अंदर में My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, now coming to the point, अब हम मुद्दे पर आते हैं। please be very cautious and attentive. बड़े सतर्क होकर के बड़े ध्यानपूर्वक बैठिए। Jesus promised that he will be returning very soon. He will be coming back very soon. यीशु मसीह ने वायदा किया है कि वो बहुत शीघ्र आने वाला है, वो बहुत जल्दी वापस आएगा। But he took a long time. He didn't yet return. लेकिन उसने बहुत लंबा समय ले लिया है, अभी तक वापस नहीं हुआ। To explain the reason for the delay in the second coming, उसके जो है दूसरे आगमन के लिए होने वाली देरी के विषय में विस्तारित किया जाए तो there is one verse in the Holy Bible. तो बाइबल के अंदर में, पवित्र बाइबल के अंदर में एक शब्द है, When you read that verse, और वो आयत को जब आप पढ़ेंगे the third chapter of the Acts becomes more meaningful for you. तो प्रेरितों के काम तीसरा अध्याय आपके लिए अनुसरण करने के लिए और भी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा। That verse is in the second book of Samuel, 5th chapter. और वो आयत जो हमें मिलती है दूसरे शमूएल के अंदर में और उसकी 5वीं आयत में, 8th verse. 5वें अध्याय की 8वीं आयत में, 2 Samuel chapter 5, 8th verse. दूसरा शमूएल की पुस्तक 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। Here the verse says, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, inside the fort of Jebus or Jerusalem, और जहूस के अंदर या यरूशलेम के अंदर there are many blind and lame people. वहां पे बहुत सारे लंगड़े और अंधे व्यक्ति हैं, So he cannot come in. इसलिए वो नहीं आ रहा है। What is the connection? यहाँ पे इसका संबंध क्या है? King David, after becoming the king of Israel, राजा दाऊद इस्राएल का राजा बनने के बाद he was taking the fort of the Jerusalem, Zion, the fort of Zion. और सियोन के जो है महल के चारों ओर जब उसे घुमाया जा रहा था, खिला है वो, महल नहीं, सियोन का खिला, the fort. महल भी ऐसा है, ताजमहल भी एक खिला है। Okay, whatever. The fort of Jebus or Jerusalem or Zion, same thing है। यवूशु या यरूशलेम या सियोन एक Yeah. जैसे। When David went there to take over the fort, जब इस किले के ऊपर कब्जा लेने के लिए दाऊद पहुंचा, the people living inside the fort उस किले के अंदर में जो लोग रह रहे थे mockingly sent a message to David. दाऊद को उन्होंने जो है उनको अपमान करते हुए insulting message. उपहास के रूप में संदेश भेजा। Yes, insulting message to David. दाऊद को जो है एक उपहास भरा संदेश भेजा। They said, "Oh David, you are thinking that you are a mighty man. उन्होंने कहा, दाऊद तू सोच तो रहा है कि तू बड़ा सामर्थी व्यक्ति है, But if you come into the fort, लेकिन यदि तू किले के अंदर आया here blind people and lame people will drive you away." तो यहाँ के जो लोग जो अंधे और लंगड़े हैं वो तुझे खदेड़ देंगे। The main army is not required to fight you. मुख्य जो यहाँ पे फौज जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे साथ युद्ध करने की। The main army is not required to fight the battle. और यहाँ पे जो मुख्य फौज है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे साथ लड़ाई करने के लिए। Inside the fort of Zion, और सियोन के किले के अंदर the lame people will drive you away. जो लंगड़े लोग हैं वही तुझे खदेड़ देंगे।
The blind people in the fort, they will defeat you in the war. जो लोग जो अंधे हैं, दाऊद इस किले के अंदर में घुसते ही तुझको जो है पराजित कर देंगे। This hurt David like anything. और ये चीज जो दाऊद को बहुत ही सता गई। He was hurt in his heart. वो अपने मन के अंदर में बहुत जो है सताने लगा। Lame fellows will defeat me in the battle. लंगड़े लोग क्या मुझे युद्ध में पराजित कर देंगे? Lame and blind people will they will defeat and they will win the battle against me. क्या लंगड़े और अंधे लोग मेरे से युद्ध में जीत जाएंगे? I am such a mighty man of war. मैं परमेश्वर का इतना सामर्थी व्यक्ति हूँ। I killed the lion and the bear. मैंने भालू को और चीते को फाड़ा मारा। I killed Goliath. मैंने गोलियात को मारा। I fought many battles. मैंने बहुत सारे युद्ध को जीता। Now these fellows are telling me, if you come inside, the lame people will just drive you away. और अब ये व्यक्ति जो कह रहे हैं कि अगर तू अंदर आएगा तो ये लंगड़े और अंधे लोग तुझे खदेड़ देंगे। Lame people will defeat you. अरे ये जो लंगड़े लोग तुझे पराजित कर देंगे। Now you are trying to get connected. अब हम इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। In Acts of Apostles 3rd chapter we see a lame person. और प्रेरितों के काम 3रे अध्याय तक हम देख सकते हैं यहाँ पे लंगड़े व्यक्ति को। In 2 Samuel 5:8 we see lame people. 2 शमूएल 5:8 के अंदर में हम देखते हैं लंगड़े व्यक्ति के विषय में। Can you see the connection? आप यहाँ पे संबंध को देख सकते हैं। David was insulted. दाऊद यहाँ पे जो है उसका तिरस्कार किया गया। The fort of Zion, the fort of Jebus, the fort of Jerusalem belongs to me anyway. यबूसियों का किला, जायोन का किला या यरूशलेम का किला वो मेरा है। I will take it anyway. मैं उनको कह दूंगा। No, I will take it. I will possess it. मैं इस सब को अपने कब्जे में ले लूंगा। Yes, I will win the battle. मैं युद्ध को जीतूंगा। I will take over the city. और इस शहर पना को मैं जीत लूंगा। But I hate to see the lame people there. लेकिन वहां पे ये लंगड़े लोग होंगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मेरे लिए जो है घृणा की बात है। Because they are the cause of insult for me. क्योंकि इन लोगों ने मेरे जो है बेइज्जती करने के ये कारण ठहरे हैं। David said, no, I will not come into the fort. दाऊद कहता नहीं, मेरे को किले के अंदर में आने की जरूरत नहीं। I will not come into the fort. मैं किले के अंदर तो नहीं आऊंगा। जरूरत नहीं की बात नहीं, जरूरत तो है, लेकिन आने के लिए मेरे दिल नहीं बोलता है। I hate to come into the fort. और किले के अंदर आने के लिए मुझे बड़ी घृणा होती है। Because when I see the lame fellows in the fort, I feel insulted. क्योंकि वहां पे किले के अंदर में अगर मैं लंगड़ों को देखूंगा, ये मेरे लिए बड़ी घृणा की बात होगी। So David issued an order, military order. तब दाऊद ने जो है एक सैनिक आदेश को पारित किया। You know what is that order? आप जानते हो वो आदेश क्या था? He said, my army first go into that city. मेरी सेना सबसे पहले उस शहर पनाह में प्रवेश करेगी। In the first place, kill all the lame people. और सबसे पहला काम करेंगे वो सारे लंगड़ों को मार डालेंगे। As long as there is one single lame fellow, I will not enter into this यहां fort. तक कि अगर एक भी लंगड़ा व्यक्ति वहां पे होगा, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। So the army of David entered into the fort of Jerusalem. और इसलिए दाऊद की सेना ने यरूशलेम किले के अंदर में प्रवेश किया। And searched out and sought out, and they picked up wherever a lame person is there and began killing them. तो उन्होंने जहां कहीं भी कोशिश हुई मिलने का ढूंढा और उन्होंने जो है इन व्यक्तियों को पकड़ पकड़ के खत्म कर दिया। Every soldier of David,
दाऊद के हर एक सैनिक लोगों ने, they entered into the city of Jebus, और उन्होंने यबूश के शहर में घुस करके, and they were looking for lame fellows, और वहां पे उन्होंने लंगड़े लोगों को ढूंढना शुरू किया, and they were killing every lame person, और सारे लंगड़ों को उन्होंने मार डाला, and they came to David again. और वे फिर दाऊद के पास आए। David said, is the operation finished? दाऊद ने कहा, क्या जो है काम पूरा हो गया? Is the military operation finished? क्या सैन्य कार्यवाही पूरी हो गई? Did you finish killing all the lame fellows? क्या आपने सारे लंगड़े लोगों को मार डाला? Yes. हाँ। Yes, our Lord, yes, my Lord, we killed all the lame हाँ, हमारे fellows. स्वामी, हमने सबको मार डाला। Then David entered into that city of Jerusalem. तब दाऊद ने उस नगर के अंदर में प्रवेश किया, And this 8th verse says, और फिर वहां पे 8वीं आयत कहती है, आप पढ़िएगा। उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े, और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है उन्हें मारे। या लंगड़े और अंधे जिनसे दाऊद मन से क्या करता है? घिन, बोले तो घिन, घिन, सेम, शेम, नफरत, नफरत, द्वेष करता है, नफरत करता है। दाऊद लंगड़ों से नफरत करता है। डेविड हेट्स द लेम पीपल, और दाऊद लंगड़ों से घिन करता था, दैट्स व्हाई ही डजंट कम इनटू द सिटी। और इसीलिए तो वो उस शहर में नहीं घुस रहा था। यू नो, देयर इज अ ग्रेटर डेविड, और आप जानते हैं एक महान दाऊद है, द सन ऑफ डेविड, इवन जीसस क्राइस्ट। और दाऊद की संतान, यहाँ तक कि यीशु मसीह, ही इज नाउ वेटिंग आउटसाइड टू कम इनटू द जेरूशलम। वो अभी भी यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए इंतजार कर रहा है। Jerusalem and Zion are the types of the church of Jesus Christ. और यरूशलेम या सिय्योन जो है मसीह यीशु की कलीसिया का प्रतिरूप है। Jesus wants to come into the church, यीशु उस कलीसिया में आना चाहता है, but he hates the lame people. लेकिन वो लंगड़ों से घिन करता है। As long as there are lame people in the city, Jesus will not come in. जब तक शहर के अंदर में लंगड़े होंगे, यीशु अंदर नहीं आएगा। You know why he doesn't want to come into a lame people's city? आप जानते हैं कि लंगड़ों के शहर में वो क्यों प्रवेश नहीं करना चाहता? Because he is the son of David. क्योंकि वो दाऊद की संतान है। David hates the lame people. और दाऊद लंगड़ों से नफरत करता था, And the son of David hates the lame people. तो इसलिए दाऊद की संतान भी लंगड़ों से नफरत करती है। But I said he is the greater son of David. लेकिन मैंने कहा कि दाऊद से भी महानतम एक परमेश्वर दाऊद की संतान है। When he looked into the church, और जब वो कलीसिया की ओर देखता है, this is the city of Jebus. और जब वो यबूश नगर की ओर देखता है, The situation is not that there are many lame people. वहां पे परिस्थिति जो है बहुत सारे लंगड़ों जैसी नहीं है, The whole church is lame. क्योंकि यहाँ पे तो पूरी कलीसिया ही लंगड़ी है। He was looking at a lame church, अब जो वो लंगड़े कलीसिया की ओर देख रहा है, and there is a blind church, और अंधी कलीसिया की ओर देखता है, and there is a deaf church. और एक बहरा कलीसिया है। Am I talking too much? क्या मैं ज्यादा बोल रहा हूं? You know what the scripture says. आप जानते हैं वचन क्या कहता है? You know what the Lord Jesus said to the church at Laodicea? और लिकुदुसिया की कलीसिया को परमेश्वर ने क्या कहा? You are blind and you don't know that you are blind. और तुम अंधे हो लेकिन तुम जानते नहीं कि तुम अंधे हो। The church at Laodicea is a blind church. और लिकुदुसिया की कलीसिया जो है एक अंधी कलीसिया थी। And the son of David doesn't like the blind Christians. और दाऊद की संतान जो है अंधी कलीसिया को, अंधे मसीह को नहीं पसंद करता। Spiritually blind people. जो लोग आत्मिक अंधे हैं। And when all the 7 letters were given, admonishing and exhorting letters
through Apostle John, ये सारे प्रोत्साहित पत्र जो है ये प्रेरित यूहन्ना के द्वारा जो दिए गए थे उन Yeah. सातों खतों से Jesus concluded every letter saying, "He that hath an ear to hear, let him hear." और इस उन सारी बातों का जो संक्षिप्त सारांश देता है कि जिसके कान हो वो सुन ले। Every person who hath an ear to hear what the Holy Spirit is telling to the churches. और हर एक व्यक्ति जिसके कान सुनने के लिए हैं वो सुन ले कि कलीसिया से आत्मा क्या कहता है। To whom the Spirit is saying these words? और पवित्र आत्मा अपने शब्दों को अपने वचनों को किससे कह रहा है? To the whole church. वो पूरी कलीसिया से। The Spirit is saying the words to the churches. और परमेश्वर की कलीसियाओं परमेश्वर की आत्मा कलीसियाओं से कह रहा है। And who is expected to hear that word? और उसके वचन को सुनने के लिए कौन अपेक्षित है? Any person who has an ear to hear. हर एक व्यक्ति जिसके सुनने के कान हो। Talking to the whole congregation, सारी जमात को बोलते हुए expecting at least one person to listen. अपेक्षा वो ये करता है कि एक भी व्यक्ति हो जो सुनने के लिए हो। Why is it so? ऐसा वो क्यों कर रहा है? Because the whole church is blind and deaf. और क्योंकि सारी कलीसिया सारी जमात जो है अंधी और बहरी है। The whole church is deaf. सारी कलीसिया जो है बहरी है। They cannot listen to the voice of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की वो आवाज को सुनना नहीं चाहते हैं। The whole church is blind. और सारी कलीसिया अंधी है। They cannot see the wonderful things of God in the Holy Scriptures. और पवित्र वचन के अंदर में जो है अद्भुत बातों को वो देखना ही नहीं चाहते। And they are paralyzed people. वो जो है लंगड़े लोग बन गए हैं। अपंग Paralysis हो गए, पक्षवात. अपंग They cannot work for God. वो परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते। And they are dumb people. और वो जो है गूंगे बन गए हैं। They cannot speak to God. वो परमेश्वर से बातचीत नहीं करना चाहते। They cannot preach the gospel. वो सुसमाचार को प्रचार नहीं करना चाहते। And still they celebrate Christmas every year. लेकिन फिर भी जो है हर वर्ष वो बड़ा दिन मनाते हैं। Christmas. And they put a star on their houses. वो अपने घरों पे जो है सितारा लगाते हैं। I am not criticizing the star or the Christmas. मैं जो है क्रिसमस मनाना या स्टार लगाने के विरोध में नहीं बोल रहा। I too put a star on my house every December. और मैं जो है अपने घर पे हर क्रिसमस पे जो है सितारा लगा सकता हूँ। लगाता हूँ. लगाता भी हूँ। And I celebrate Christmas in a very grand way. और मैं विशाल रूप से क्रिसमस को मनाता भी हूँ। Putting a star over your home is okay. और अपने घर के ऊपर सितारा लगाना ठीक है। If you are delivered from your deafness and spiritual blindness, you yourself will become a star for God. आमीन। अगर आप अपनी आत्मिक जो है बहरेपन से और अंधेपन से अगर छुटकारा पा गए हैं तो आप स्वयं खुद जो है वो सितारा बन जाएंगे। God wants you to be a star. परमेश्वर आप जैसे सितारे को इस्तेमाल करेगा। How can we be a star? हम कैसे सितारा बन सकते हैं? When we are blind and lame. जब आप जो अंधे और लंगड़े हैं। So God sent the greater David sent his army into this world. तो परमेश्वर ने दाऊद को भेजा और महान दाऊद ने अपनी सेना को इस संसार में भेजा। The Old Testament David said, kill all the lame people. पुराने नियम में दाऊद कहता है सारे लंगड़े लोगों को मार डालो। But in the New Testament, किंतु नए नियम के अंदर again Jesus says, फिर से यीशु कह रहा है I don't like these lame fellows. मैं इन लंगड़े लोगों को से खुश नहीं हूँ। I hate these lame people. मैं इन लंगड़ों से जो है घृणा करता हूँ।
I hate these spiritually blind people. और ये आत्मिक अंधे लोगों से मैं घृणा करता हूं I cannot come into their और मैं town. उनके बीच में आना नहीं चाहता। As long as they're blind and lame, I cannot come inside. जब तक वो जो लंगड़े और बहरे बने रहेंगे मैं अंदर नहीं आऊंगा। Oh, my soldiers. ओ मेरे सैनिकों, Oh, my army. ओ मेरी सेना, Go into the city. ओ शहर में जाओ, But don't kill the lame people. लेकिन लंगड़ों को मत मारना। Make them walk in my name. अब वो कहता है मेरे नाम से उनको चलता फिरता बनाओ। Don't kill the blind people. अब जो अंधों को मारो नहीं, Make them see in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से देखने वाला बना दो। You see, the whole point in the 3rd chapter of Acts of और Apostles देखिए सारा मुद्दा जो है इस बिंदु पे आ जाता है जो प्रेरितों के काम 3 अध्याय में पाया जाता है। the power of God comes down to earth not only to heal a lame person, it comes to heal the lame church. और यहाँ पे जो है केवल अंधे व्यक्ति को चंगा करना नहीं है बल्कि पूरी अंधी कलीसिया को या लंगड़ी कलीसिया को चंगा करना है। There are many lame people in the Christian society, मसीह समाज के अंदर में बहुत सारे जो लंगड़े लोग हैं, many blind people in the Christian बहुत society, सारे मसीह समाज के अंदर अंधे लोग हैं। and the greater David is still waiting for the healing in their lives. लेकिन महान दाऊद जो है अभी भी उनके जीवन के अंदर में चंगाई की इंतजार कर रहा है। Who is the greater David? वो जो महान दाऊद कौन है? Our Lord Jesus हमारा Christ. परमेश्वर यीशु मसीह। He is still not coming. वो अभी तक नहीं आ रहा है, He's waiting. वो अभी तक इंतजार कर रहा है You are waiting for his coming, और आप उसके आगमन का इंतजार कर रहे हैं, but he is waiting for your healing. लेकिन वो आपकी चंगाई का इंतजार कर रहा है। He is waiting for you to be healed. वो इस इंतजार में कि आप चंगे हो जाए। Are you lame spiritually? क्या आप आत्मिक लंगड़े हैं? Are you handicapped spiritually? क्या आप आत्मिक अपंग लोग हैं? Are you blind spiritually? क्या आप आत्मिकता में अंधे हैं? Are you like the church at Laodicea? आप क्या लकेदोसिया कलीसिया के समान हैं? Are you like the churches who cannot listen to the voice of the Spirit? और क्या आप ऐसी कलीसिया है जो परमेश्वर की आत्मा को नहीं सुनना चाहती? Jesus is waiting for you to be healed. और यीशु इंतजार कर रहा है कि आप चंगाई पाएं। I am very sad to say, मैं बड़ा खेदित हूं ये कहते हुए, my message should start now. मेरा संदेश अब शुरू हो रहा है। Now I am entering the topic. अब मैं विषय में प्रवेश कर रहा हूं। What all I said so far is only introduction. अब तक जो मैंने कहा था वो परिचय था केवल। I want to preach the whole message, और मैं चाहता हूं पूरा संदेश प्रचार करूं, but I am afraid you will not let me come to Delhi next time. लेकिन मुझे भय है कि आप फिर आगे से मुझे दिल्ली नहीं आने देंगे। See, I will give you just a verse to read and then close. मैं अगर केवल एक आयत को पढ़ करके बंद करने के लिए देना चाहूं, In the 3rd verse, तीसरी आयत के अंदर third chapter of Acts of Apostles, प्रेरितों के काम 3 अध्याय के अंदर people were debating how this lame person got suddenly healed. लोग इस बात के ऊपर जो है बहस पे बहस करे जा रहे हैं कि कैसे ये लंगड़ा व्यक्ति ठीक हो गया। Peter and John say, पतरस और यूहन्ना ने कहा, we did that, not we did, but the power in the name of Jesus healed him. पतरस और यूहन्ना ने कहा हमने ऐसा नहीं कहा किया, लेकिन यीशु मसीह के नाम से जो सामर्थ आई है उस सामर्थ ने चंगा किया है। While answering the inquiry, the authorities of the temple, और वहां के मंदिर की जो है अधिकारी गणों को जो है जवाब देने के समय पर all of a sudden, अचानक Peter gave them a new message. पतरस ने उनको एक नया संदेश सुना दिया। You are talking about the healing of the lame person, आप लोग इस लंगड़े व्यक्ति की चंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, but you know the plan of God is, लेकिन क्या आपको पता है परमेश्वर की योजना क्या है? in the verse 21,
और 21वीं आयत के अंदर Please read it out. अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले। The restoration of all things must happen. और सब चीजों का सुधार बहुत जरूरी है हो जाना। You are all bothered and you are all astonished and surprised about the healing of a single male, single person, a lame person. आप सब लोग जो है एक मात्र इस लंगड़े की चंगाई को लेकर के इतने भौचक्के हैं, इतने परेशान हैं, इतने चिंतित हैं। One lame man is healed and you are worried about that and you are surprised about केवल that. एक लंगड़ा व्यक्ति ठीक हुआ है, उसके एवज में तुम सब लोग परेशान हो। Jesus is still waiting in heaven. यीशु अभी भी स्वर्ग में इंतजार कर रहा है। Actually, he wants to come back soon. और वो सही में तो वो शीघ्र आने वाला था, He's not coming down again. लेकिन अभी तक वो नीचे नहीं आ रहा है। He is delaying. वो अभी भी टाल रहा है, He's tarrying. He's waiting. वो अभी तक इंतजार कर रहा है, टाल रहा है। You know why? आप जानते क्यों? The restoration of all things must happen. सब चीजों का सुधार होना बहुत आवश्यक है Heavens must receive him till that time. और उस समय तक जो है स्वर्ग उसको ग्रहण करने योग्य बन जाए। The point here is, मुद्दा यहाँ पर यह है, here one single person is healed. यहाँ पे इकलौता एक व्यक्ति चंगा हुआ है, But the actual requirement is लेकिन वास्तविक यहाँ पे आवश्यकता जो है the healing of the church of God. परमेश्वर की कलीसिया का चंगा होना है। The restoration of all things. सारी चीज का सुधार होना जरूरी है Everything must be repaired. और सारी चीज को फिर से पुनर्स्थापित करना है। Everything must be restored. सारी चीज को पुनर्स्थापित करना है। That means इसका मतलब everything is out of order in the church. अभी जो है कलीसिया के अंदर में सारी चीजें तितर बितर हो रखी हैं। When they say everything must be restored, जब वो कहते हैं कि सब चीजों का सुधार होना जरूरी है, that means everything needs to be restored. तो इसका मतलब है सारी चीजों को वास्तविक तौर पे सुधरना जरूरी है। Everything must be healed. हर एक चीज को जो है चंगाई मिलना जरूरी है। Everything in what? हर एक चीज मतलब क्या? In the world? संसार में। Does it mean that all the roads in the world must be laid in a very nice way? क्या इसका मतलब ये नहीं कि सारी सड़कें जो है साफ सुथरी बिल्कुल हो जाए? Does it mean that all the poor people get food and housing and clothing and all that? क्या इसका मतलब ये है कि सारे गरीब लोगों के पास में घर मकान रोटी कपड़ा हो? The Lord is speaking about his own church here. लेकिन यहाँ पे परमेश्वर अपनी कलीसिया से बात कर रहा है। Nice roads and nice buildings and nice health conditions they will happen in the 1,000 years realm of Christ. और परमेश्वर की वो जो है 1000 वर्षीय शासन काल के दौरान सारे के सारे रोड और सब कुछ अच्छे हो ही जाएंगे। But in this dispensation, लेकिन इस युग के अंदर में God is concerned about the church. परमेश्वर की चिंता कलीसिया की ओर है। In the church, कलीसिया के अंदर, in the house of God, परमेश्वर के घर के अंदर, in Jerusalem, यरूशलेम के अंदर, in Zion, सिय्योन के अंदर, in the fort of Jebus, और यबूस के किले के अंदर nothing is okay. कुछ भी ठीक नहीं है, Nothing is all right. कुछ भी सही नहीं है Everything is out of order. और सब कुछ तितर बितर हो रखा है। There must be restitution of all things. सब चीज का सुधार होना जरूरी है। Everything must be made okay. सब चीज जो है सुधार होना, सबका ठीक होना जरूरी है। What are all these everything what it involves? और ये सब चीज में क्या क्या शामिल है? Our doctrine हमारी शिक्षा must be restored to the original apostolic gospel. और वो जो है वास्तविक जो है प्रेरितों की शिक्षा के जैसा सुधरना जरूरी है।
सुसमाचार must be the real सुसमाचार which Paul preached. वो जो सुसमाचार होना है वो सच्चा सुसमाचार जैसे पतरस ने प्रचार किया वैसा सुधरना जरूरी है। If you all come to my church, अगर आप हर एक मेरे कलीसिया में आए, you will have a lot of money. आपको वहां पे बहुत सारा पैसा नजर आएगा। That is not the gospel. वो सुसमाचार नहीं है। You can have a lot of money and still go to hell. आपके पास जो है बहुत सारा धन हो सकता है लेकिन फिर भी आप नरक जाएंगे। Come to my church and you will be healed. आप मेरी कलीसिया में आए और आप चंगे हो जाएंगे। That is not the gospel. ये सुसमाचार नहीं है। If you get healed also, still you can go to hell. आप चंगे हो जाएंगे फिर भी आप नरक जाएंगे। What is the real gospel? सच्चा सुसमाचार क्या है? Acts 4:12 is the real gospel. और प्रेरितों के काम 4 अध्याय की 12वीं आयत जो है एक सच्चा सुसमाचार है। There is no salvation in any other name. और उद्धार किसी दूसरे नाम में नहीं दिया गया है। We all have to be saved only in this name. और हम सबका उद्धार केवल इसी एक नाम में हो सकता है। That is the name of और वो Jesus. नाम केवल यीशु है। If you believe in the Lord Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह परमेश्वर में विश्वास करते हैं your salvation is guaranteed. और आपके उद्धार की जो है गारंटी है। If you don't trust in the name of the Lord Jesus Christ, अगर आप यीशु के नाम में भरोसा नहीं करते हैं if you don't come and take shelter under the blood of Jesus, और आप यीशु मसीह के लहू में शरण नहीं पाते हैं even good people go to hell. तो अच्छे लोग भी नरक जाएंगे। You don't go to, yes, you are right. You don't go to heaven because you are good. आप अच्छे हैं इसलिए स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे। You go to heaven because of the blood of Jesus. आप स्वर्ग इसलिए पहुंचेंगे क्योंकि आपने यीशु के लहू में धुल के साफ हुए। Trust in the blood of Jesus, और यीशु के लहू पर विश्वास करें and your salvation is guaranteed. तो आपकी जो है उद्धार की निश्चितता है। If you trust in the blood of Jesus, अगर आप यीशु के लहू में भरोसा करते हैं, you may be rich or poor, आप चाहे गरीब हो या अमीर हो, but you will go to heaven. आप स्वर्ग में जाएंगे। You may be healthy or sick, आप हो सकता है स्वस्थ हो या बीमार हो, but the blood of Jesus will take you to heaven. लेकिन यीशु का लहू आपको स्वर्ग ले जाएगा। That is the gospel. ये सुसमाचार है। Our way of preaching the gospel must be restored. हमारे प्रचार करने का तरीका जो है सुधरना चाहिए। The way we manage our local churches must be restored. हमारे जो अपनी स्थानीय कलीसिया का प्रबंधन जो है वो सुधरना चाहिए। The sound doctrine of apostles must be restored. प्रेरितों की शिक्षा जो बिल्कुल सही सटीक है वो सुधरनी चाहिए। The true order of service, the worship service on a Sunday must be restored. हमारे कलीसिया के अंदर में रविवार की जो आराधना जो पद्धति है उसे सुधरना चाहिए। The love and understanding between each and every believer must be restored. हर विश्वासी के मध्य में जो है सोच विचार और प्रेम जो है सुधरना चाहिए। Everything must be restored. सब कुछ सुधरना चाहिए। If it is not restored, यदि वो सुधरता नहीं है, if everything is not restored, अगर सब कुछ सही नहीं किया गया, the greater David says, तो महान राजा दाऊद कहता है, I cannot come now. मैं अभी नहीं आऊंगा। I hate this situation. मैं इस तरह की परिस्थिति को नफरत करता हूँ, घृणा करता हूँ। I don't hate the lame people, मैं लंगड़ों से तो घृणा नहीं करता, but I hate that lame condition in their body. लेकिन उनके शरीर के अंदर में लंगड़ेपन की परिस्थिति से मैं घृणा करता हूं। I hate the spiritual blindness in their body. और उनके शरीर के अंदर में आत्मिक अंधेपन से मैं घृणा करता हूं। The spiritual blindness in their life must be removed. और उनके जीवन से आत्मिक अंधेपन को जरूरी है निकाल फेंका जाए। If you love the second coming of the Lord, अगर आप यीशु मसीह के दूसरे आगमन से प्रेम करते हैं, then pave the way, prepare the way for the Lord. तो for the King परमेश्वर of के लिए Kings. रास्ते को तैयार कीजिए। Prepare a way for the King of Kings and the Lord of Lords to come down. और राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु को वापस आने के लिए मार्ग को तैयार कीजिए। John the Baptist,
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, He prepared a way for the king. और उसने राजा के लिए मार्ग को तैयार किया। You also can become the John the Baptist. आप लोग भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बन सकते हैं, You can make the way for the King of Kings to come और down. राजाओं के राजा को वापस आने के लिए आप मार्ग को तैयार कीजिए। How can you make the way for him to come? और उसके लिए आप रास्ते को कैसे तैयार करेंगे कि वो वापस आए? Get busy in the holy activity of restoration of all things. और सब चीज के सुधार की पवित्र प्रक्रिया के अंदर में अपने आप को व्यस्त कर दीजिए। If you get busy restoration of all things, और सारी चीजों की सुधार की प्रक्रिया के अंदर में अपने आप को यदि आप व्यस्त करेंगे, if you begin to work for the restoration of all things, तब आप जो है सारी चीज को सुधार में ला सकेंगे। if you pray for the restoration of all things, और आप सारी चीजों के सुधार के लिए प्रार्थना करते हैं, if you become an instrument in healing the lame and blind people in Zion, और सियोन के अंदर में लंगड़े और अंधे को चंगे होने के सुधार के अंदर में आप प्रार्थना करेंगे, तो then the way for the Lord to come down is open. तब परमेश्वर का रास्ता जो नीचे वापस आने के लिए है वो खुल जाएगा। When there is no lame person and no blind person in Zion, David will come. और जब कोई भी अंधा या कोई भी लंगड़ा नहीं होगा तो दाऊद जो है वो आएगा। We don't want to kill the blind people. We don't want to kill the lame people. अब हमें जो है अंधों को मारने या लंगड़ों को जो है मारने की आवश्यकता नहीं है, But in the name of Jesus, लेकिन यीशु मसीह के नाम में we want to make the spiritually blind people begin to see the truth of God. तो हम चाहते हैं कि जो आत्मिक अंधे हैं वो मसीह यीशु की सत्यता को देखने के लिए तैयार हो जाए, वो हम तैयार करें। We want to make the spiritually lame people walk and jump for God. आत्मिक अंधे लोगों को हम चाहते हैं कि मसीह के साथ चलने के लिए खड़े हो जाए और कूदे भरे। Shall we get involved in this great ministry क्या of हम इस restoration? महान सुधारक जो सेवकाई के अंदर में अपने आप को जो संलग्नित करें, I invite everyone into this ministry of restoration. और इस सुधार की सेवकाई के लिए मैं सबको आमंत्रित करना चाहता हूं। The books we are going to release this evening जो पुस्तक जो आज शाम को हम उसका अनावरण करने जा रहे हैं are instruments of restoration of all things. और वो जो है सारी चीजों के सुधार का एक यंत्र है। Let us see a day when there is no blind Christian, no lame Christian, spiritually speaking. आत्मिक बोलचाल के आधार पे आइए जो है कोई भी अंधा और लंगड़ा व्यक्ति ना रहे। If you read those books and understand, there जब will not आप- be any blind man or any lame person spiritually. जब आप जो है उस पुस्तकों को पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अंधा या बहरा नहीं रहे। Jesus is coming very soon. यीशु बहुत शीघ्र आने वाला है। He is waiting at our doorpost. वो हमारे द्वार पे खड़ा इंतजार कर रहा है, At the doorstep, he is waiting. और वहां पे जो है दरवाजे पे वो खड़ा इंतजार कर रहा है। Why doesn't he come in? वो अंदर क्यों नहीं आ रहा? Many spiritual eyes are yet to be opened. अब बहुत सारी आत्मिक आंखें अभी भी खुलना जरूरी है। Many people are lame spiritually. बहुत सारे लोग आज भी जो है आत्मिक लंगड़े हैं। I hope the message has reached. मेरी आशा है कि जो संदेश में देना चाहता था वो आप तक पहुंच गया है। Let us all stand up and make a dedication for the Lord. आइए हम सब लोग खड़े हो जाए कि हम परमेश्वर के लिए समर्पित करें। Let us make a rededication to fulfill the will of God in the church. आइए अपने आप को परमेश्वर की जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए तैयार करें। Close your eyes. अपनी आंखों को बंद करेंगे। I want every eye closed and every head bowed. मैं चाहूंगा कि सारी आंखें बंद हो जाएं और परमेश्वर के सामने हृदय जो है झुक जाए। Close your physical eyes and open your spiritual eyes. अपनी शारीरिक आंखें बंद करके आत्मिक आंखों को खोल दे Look to the Lord of the church walking in our midst. और परमेश्वर की ओर देखे कि वो हमारे बीच में चले फिरे।
Tell him, Lord, come back soon. परमेश्वर से कहें, परमेश्वर शीघ्र आ। Lord, we are waiting for your second coming. परमेश्वर तेरे दूसरे आगमन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। Please come and take us away to the glory world. परमेश्वर इस महिमा में संसार में हमको लेके जा। Take us to heaven where you are living for all eternity. परमेश्वर हमको जो है स्वर्ग में लेके जा जहाँ पे तू अनंतता का वास करता है। Let the cloud of glory that has taken you to heaven, प्रभु वो बादल जो हमको स्वर्ग में ले जाए वो आने पाए। the same cloud that took you from the Mount Olivet, let the same cloud take me also to heaven. वही बादल जो तुझे ओलिव पर्वत पे उठा के लेके गए वही हमको भी लेने आ जाए। Dear Lord Jesus, please come down. परमेश्वर प्रभु हमारे हृदय में आ। Thank you for teaching me what I can do to hasten up your coming. परमेश्वर धन्यवाद देते हो, जो कुछ तू हमसे चाहता था उन बातों को सिखाने के लिए आपने योग्य बनाया। Dear Lord, I want you to come back soon. प्रभु तेरा कार्य है कि तू शीघ्र आने वाला है। I want to make the way before you. प्रभु हम चाहते हैं कि उसके लिए हम अपने मार्गों को तैयार करें। I want to see every lame person in the church healed. मैं हमेशा देखना चाहता हूँ कि हर एक लोग जो लंगड़े हैं वो चंगे हो जाए कलीसिया के I अंदर। want to see every spiritually lame and spiritually blind person healed. प्रभु सारे आत्मिक जो है लंगड़े जो है कलीसिया के अंदर में वो चंगे हो जाए। Let the Holy Spirit fall upon the church right now as never before. प्रभु हम सब ऐसा चीज जो अब तक नहीं हो पाया वो ऐसा करने पाए। Let us all lift up our hands प्रभु हम सब अपने हाथों को उठाते हैं and praise the Lord and invite Him into our midst. और प्रभु हमारे मध्य में प्रार्थना करते हैं। Come down, O Lord Holy Spirit. पवित्र आत्मा नीचे उतर रहा Come to heal every spiritually blind person. और हर एक जो आत्मिक मृत लोगों को चंगा करे Come down and heal every spiritually lame person. और हर एक आत्मिक लंगड़ों को चंगा करे। Our Lord hates the lameness and blindness in the church. प्रभु हमारी जो है आत्मिक अंधापन और लंगड़ापन जो हमारी कलीसिया में उससे हम घृणा करने वाले बने। Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद। Come Lord, come Lord, come प्रभु Lord. आजा उतरा Utara उतरा Prabhu, उतरा Utara Prabhu. Come and touch every Christian person, Christian believer in every denomination, all over the world, in every church. Ura dara yadara bara sandara diyara dara bara dikandara bara humbari dara diyara dara bara humbari dandara dikara dara bara dikandara bara humbara bara dikara dara bara diyandara bara dikandara bara diyara bara. Let everyone receive the baptism of fire right now. Ura dara bara sikaru dara bara sundara dihara dibara dikara bara humbari dara sirandara diyakandara bara. God bless our nation, bless every church and every denomination, bless our national central government, bless every state government, bless every pastor and church leader. Open their spiritual eyes, heal their spiritual feet. Ora bakalandara bahudari kalandara diyadara barasi, undari andara barasi rakalandara barasi. Pura karabara karalandara dindara vikara bara vikara bara sikandara vikara bara bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Let their power fall upon the lame church. Let their power fall upon the blind church and heal the blind churches and lame churches, O Lord. O Sandara Bari Hudira Kaladara Barasi Kandara Vikandara. Let there be the restitution of all things right now. Let there be the restoration of all things in the church right now. In the name of Jesus, arise and walk, O Lord Church. In the name of Jesus, begin to see, O blind church. Thus says the Lord, let all the blind Christians begin to see the truth of God in the name of Jesus. मैं परमेश्वर की आत्मा कहती है कि सारे जो आत्मिक अंधे और लंगड़े यीशु मसीह के नाम से देखने लगेंगे। In the name of Jesus, let every lame, spiritually lame Christian begin to walk and dance and
jump for हर joy. एक आत्मिक लंगड़े और पहले लोग मसीह यीशु के नाम में चलने फिरने लगे। और अदरबरा हुंदर दियारा दर यारा दरबरा शिखरम पूरा बाबा दरबरा। ये तेरी लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद Thank you, Lord. धन्यवाद तारीफ 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 In our own lifetime, help us to see a totally healthy church, O Lord. थैंक यू मास्टर, Let us pray. Almighty God, our loving Heavenly Father, सर्व सामर्थी परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाले स्वर्गीय पिता, thank you for thy message this afternoon. इस मध्याह्न के समय के संदेश के लिए हम आपका शुक्र करते हैं। Thank you, Lord, for helping us to see the deeper things in the scriptures. परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस आत्मिक वरदान के लिए जो आपने हमारे बीच में देखने को दिया। I pray with all my heart, all of us we pray with all our hearts earnestly that you will come down and touch and heal every spiritually Amen. lame and blind Hallelujah. person, oh Lord. प्रभु, मैं अपने हृदय से और हम सब अपने हृदय से प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे बीच में उतर के और हम सबको आत्मिक अंधेपन और बहरेपन से, लंगड़ेपन से चंगाई दे। हालेलुया। In every local church of every denomination under the sky, और इस आसमान के नीचे हर एक जो सिद्धांत, हर एक कलीसिया के अंदर में, in all the denominations, सारे संप्रदाय के अंदर में, every pastor and church leader, हर एक पासवान कलीसिया के अगुवों के लिए, let them all jump like the lame man at the beautiful gate, O Lord. और परमेश्वर जो वो सुंदर दरवाजे के ऊपर पड़े हुए अंधों, वो लंगड़ों के समान। You are the great spiritual healer, O Lord. ओ परमेश्वर, तू महान आत्मिक चंगाई देने वाला परमेश्वर है। Physical healing is not enough for us. शारीरिक चंगाई हमारे लिए पूर्ण नहीं है। Spiritually we must be healed, O Lord. हमें आत्मिक रीति से चंगा होना जरूरी है। We must see the spiritual things हम सब जो है आत्मिक चंगे होते हुए देखें अपने आप को, and walk and jump with joy हम in चलने spiritual पाए life. और उछलने कूदने पाए। In spiritual life, we want to have these healthy feet, O Lord. और इन आत्मिक आंखों के द्वारा हम आत्मिक चीजों को देखने पाए। Dear Lord, make thy word fruitful. प्रभु, तेरा वचन को फलवंत बना दिया जाए। Let thy word bear much fruit in everyone's life. Yes, Pastor, हाँ। Let thy word bear much fruit in everyone's life. हम सबके जीवन में तेरे वचन जो है फलवंत होने पाए। Bless the book release function in the evening, O Lord. आज शाम के समय में जो किताब का अनावरण होना है उस पे तेरी आशीष चाहते हैं। Thank you, Lord, for bringing VIPs, delegates, and your servants, anointed servants from different countries. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, देश के भिन्न भिन्न स्थानों से तेरे लोगों को, तेरे दासों को ओ प्रभु जी यहाँ पे इकट्ठा किया। Thank you, Lord, for anointing your servant and making him able to write all those books. और परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे दास का अभिषेक करने के लिए और उस किताब को लिखने के लिए। Thank you for your help in the printing of those books. और परमेश्वर धन्यवाद देते हैं उन सारी किताबों को प्रभु जी छपाई के लिए। When these books go into this world, और जब ये किताबें इस संसार में जाती हैं they are released this evening. और जिनको आज शाम को हम अनावरण Let करेंगे, them go into every church in every country हर एक कलीसिया, हर एक देश के अंदर में, and heal every blind person and every lame person. और हर एक आत्मिक अंधे और लंगड़े व्यक्ति की चंगाई मिलने पाए। Let there be a worldwide revival, O Lord. हालेलुया, प्रभु के नाम से आमीन।
Help us to see the end time revival right before our eyes, O Lord. प्रभु तेरी अंत के समय की जो है एक बेदारी को देखने के लिए हमारी सहायता मदद करें। हालेलुया। Bless us and renew our strength and rejuvenate us for the evening event. और परमेश्वर हमें आशीष दे और शाम के जो है शाम की बेला के लिए भी हमारे जो इवेंट बनता है उसको प्रभु जी फिर से नया तरोताजा करें। In the name of Jesus we ask and receive. और यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं और ग्रहण करते हैं। आमीन। Now may the love of God our eternal Father and the grace of our Savior Jesus Christ and the fellowship of the Lord Holy Spirit be with all of us now and forevermore. Amen. Amen and amen. Amen. Thank you, Master. Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. Hallelujah.